Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 20 January 2021 and I am teaching you chapter number 7. And name of the chapter is Protecting Plants and Animals. Protecting plants and animals. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, all the living things depend on each other, and when we are talking about the living things, then plants, animals and human beings. So all the living things, they are depend on each other. Plants are known as producers because plants can only prepare their own food, and animals and human beings depend on plant for their food. We require food because food give us energy, and due to food give us energy, so that we can do different type of the activities in our day-to-day life. Now see student, we have already discussed what are the things which we are getting from the plants. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि what are the things we are getting from the plants, and even many things the human beings are getting from the animals also, and even these animals help the human beings in the cultivation also. Okay, so what things we are getting from the plants and what things we are getting from the animals, that we have already discussed. After that student, we started classification of animals. So this classification of animals we have done by the eating habit of the animals. Okay, the classification, it means we have divided animals into 4 groups. We have divided animals into 4 groups, and this classification we have done according to the eating habits of the animals. So the first group is herbivorous animals, the animals which eat only plants. That animals are known as herbivorous animals, and some of the example of these herbivorous animals are sheep, elephant, cow. So these are the example. Then first group which we have discussed, that is herbivore. First group
herbivore animals. Second is the carnivorous animal. Second is the carnivore animals. These animals are known as flesh eating animals. They kill other animal and eat the flesh of that animal. And some of the example of these carnivorous animals are tiger, leopard. So these are the example of carnivorous animal. After that, the third group which we have discussed, that is omnivore. So under this category, what is the meaning of this? Animals that eat both plants and flesh of other animals. ठीक है, animals that eat both plants and animal flesh are known as omnivore animals. Even human beings, they also come in this category of omnivorous animals. Okay, now let's start with the fourth group, that is decomposer. Decomposer. So in your previous classes, that is in class 3 and 4, we have discussed only 3 classification of animals, that is herbivore animals, carnivore animals and omnivore. Now in class 5, I will explain you what are decomposers. So these decomposers are very important part of the, you can say, food chain. These decomposers are very important role is played by these decomposers. Now you can also say that decomposer clean the environment. Is it clear? You can also say that decomposer clean the environment also. So they play a very important role in cleaning the environment. So first of all, note down the definition of a decomposer. Decomposer बेटा ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स ही इनका फूड है. ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर. जैसे प्लांट्स डेड हो जाते हैं या कोई एनिमल, मान लो आप देखते हो कि मर गया कोई एनिमल, तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर का फूड ही यही है. ठीक है, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स. तो ये उसको धीरे धीरे करके क्या करते हैं? खा जाते हैं. ठीक है, ये उसको धीरे धीरे करके क्या करते हैं? उसको खा जाते हैं. कोई एनिमल मर जाता है तो आपने देखा होगा कि वो एनिमल क्या है, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आप देखते होंगे कि उसकी बॉडी क्या है, पूरी ख़त्म हो जाती है. तो एक्चुअली उसकी बॉडी कहाँ जाती है? ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो उसकी बॉडी को क्या करते हैं? ईट कर देते हैं. ठीक है, उसकी बॉडी को खा के ये डिकम्पोजर क्या करते हैं? उसकी बॉडी को खा के ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, इसीलिए इन लोग को इन्वायरमेंट क्लीनर भी बोला गया है. ये इन्वायरमेंट को क्या करते हैं?
क्लीन करते हैं, डिकम्पोजर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द डेफिनेशन, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, और यू कैन आल्सो अंडरलाइन इन योर बुक आल्सो। Decomposers feed on dead plants. Decomposer feed on dead plants and animals. They decay dead matter and so decomposers feed on dead plants and animals. They decay dead matter and release releases minerals in the environment. सी डिकम्पोजर, ये जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट क्लीन द एनवायरनमेंट। जो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बेटा, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं यही इनका फूड है डिकम्पोजर का। दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी से डिकम्पोजर एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम डिकम्पोजर्स को बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? सो द रीजन इज दैट they are very small. These microorganisms are very small. We are unable to see them with our naked eyes. ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इनको हम कहाँ देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप में, इन द लेबोरेटरी। ठीक है, आपके स्कूल में भी साइंस लैब है, साइंस लैब में माइक्रोस्कोप है। आप माइक्रोस्कोप में क्या है, उसमें चीजें, छोटी चीजों को भी बड़ा करके देखा जा सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप वी आर एबल टू सी दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो आई होप कि इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं बेटा कि ये बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड वी कैनॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। हम अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। इसीलिए इनको, ये बहुत छोटे हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
सो अब ये क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स, आप देखते होंगे जैसे कोई एनिमल डाई कर दिया तो आप ऑब्जर्व करते होंगे उस एनिमल की बॉडी को, जैसे घर में भी कभी कभी क्या होता है, कोई रैट है, चूहा मर जाता है, ठीक है, बहुत दिन बाद जब आप उसकी बॉडी को देखते होगे तो जैसे लगता है कि बिल्कुल बॉडी खत्म हो गई है उसकी। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे होता है, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स जो हैं इनका फूड ही डेड प्लांट और एनिमल्स है, ये उसको खा के खत्म कर देते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि दे क्लीन द एनवायरमेंट। एंड जब और बहुत से मिनरल ये लोग रिलीज करते हैं, ठीक है, जब ये एनिमल की बॉडी को खा रहे होते हैं उस समय बहुत से मिनरल्स रिलीज होते हैं, एंड दीज मिनरल्स आर मिक्स इन द सॉइल, ये बहुत से मिनरल रिलीज होके सॉइल में चले जाते हैं। एंड वी नो दैट the roots of the plants absorb water and minerals from the soil. So अब ये जो मिनरल रिलीज कर रहे हैं ये दूसरे पेड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है इससे, और इस मिनरल्स को कौन यूज कर लेता है, ग्रीन प्लांट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो मिनरल ये लोग रिलीज करते हैं इन द सॉइल। अब इस मिनरल को बेटा कौन यूज कर रहा है, इस मिनरल्स को प्लांट यूज कर लेते हैं, बिकॉज वी नो डैट द रूट्स ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वी नो डैट द रूट ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सो दीज डिकम्पोजर्स दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाई releasing the minerals. So decomposers feed on dead plants, जो पेड़ मर जाते हैं, and animals, they decay dead matter and release minerals in the environment. So this is what, this is your fourth group, that is decomposers. And what are decomposers? They are known as microorganism है, इन्हें microorganism क्यों बोला गया, क्योंकि they are very small in size, we are unable to see them with our naked eyes, हम इन्हें अपनी naked eyes से नहीं देख सकते। To see these microorganism we can see them in the microscope, इसीलिए इनका नाम ही हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर, सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर इज आर बैक्टीरिया, ठीक है, सो बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द एग्जाम्पल ऑफ ए decomposer. So I hope student you are able to understand what are decomposer, and this is the complete classification of animals. First group is known as herbivorous, second group is known as carnivore animal, third is known as omnivore animals, and fourth group that is decomposers. तो देखो बेटा, अगर ये लोग डिकम्पोजर डेड प्लांट्स और एनिमल को ना खत्म करें तो क्या होगा, इतने ज्यादा एनिमल्स हैं, इतने ज्यादा प्लांट्स हैं, पूरा ढेर लग जाएगा, पूरा लैंड मरे हुए एनिमल्स और प्लांट से कवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसीलिए बोला जाता है कि डिकम्पोजर एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को नहीं खाते तो क्या होता, पूरा जो लैंड है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स, डेड एनिमल्स की बॉडी से पूरा कवर हो जाता।
इसलिए ये लोग इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके साथ साथ ये सॉइल को मिनरल रिच बना देते हैं। और ये मिनरल्स अब किसके काम आते हैं? ग्रीन प्लांट्स के काम आते हैं। Is it clear? They increase the fertility of the soil by releasing the minerals in the soil, or these minerals are used by the plants because we know that root of the plant absorb water and minerals from the soil। और ये complete plants जो अपना food prepare करते हैं तो complete process यही है photosynthesis की। They prepare their food in the presence of a sunlight, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वाटर और मिनरल प्लांट्स कहां से लेता है? रूट से लेता है। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन आपको बता देते हैं। देखो, जिस तरह मैंने बर्ड्स में क्लास 4 में आप लोग को जब बर्ड्स का बताया था, तो अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट ऑफ द बर्ड्स दे आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो इसी तरह अब एनिमल्स के 4 ग्रुप हैं एंड अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट एनिमल्स के जो टीथ होते हैं बेटा ये भी अलग होते हैं। इज इट क्लियर? जो ग्रास खाने वाले, जो प्लांट्स खाने वाले जो होते हैं, क्या कहते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके टीथ शार्प नहीं होते। इतने शार्प टीथ किसके होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स के, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल के शार्प टीथ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको फ्लैश खानी होती है, टीयर करके फ्लैश को चीर के वो खाता है। तो इसके लिए उसके एक तो टीथ बहुत स्ट्रांग भी होंगे और बहुत शार्प भी होंगे। अब देखो, हम लोग ओमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं। वी ईट प्लांट एंड फ्लैश बोथ। इसलिए हमारे माउथ में, जब तुम लोग को मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया होगा तब मैंने आप लोग को पढ़ाया होगा, वी आल्सो हैव 4 सेट ऑफ टीथ। और सारे टीथ के फंक्शन मैंने आपको बताए थे। कैनाइन्स क्यों होते हैं, इंसिजर क्यों होते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। बिकॉज हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, क्योंकि हम लोग प्लांट्स और फ्लैश, वी आर ईटिंग बोथ टाइप ऑफ द फूड। हम लोग प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ये सब चीजें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं। और हम लोग एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। दैट इज द रीजन वी हैव 4 सेट ऑफ टीथ इन आवर माउथ। सो ड्यू टू ईटिंग हैबिट द टीथ भी एनिमल्स में क्या है? डिफर करते हैं, ठीक है। जो भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होंगे उनके टीथ क्या होंगे? बहुत ही शार्प होंगे, ठीक। सो ये हो गया। अब नाउ देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, जैसे शिप है, काऊ है, एलिफेंट है, तो ये सब क्या बताया था? ये प्राइमरी कंज्यूमर है। क्योंकि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, तो वो तो आए थे आपके प्रोड्यूसर्स में। ये किस कैटेगरी में आए थे? प्रोड्यूसर्स में आए थे प्लांट्स, ठीक है। और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ये किस में आए थे? कंज्यूमर में। सो अब दोज हु आर ईटिंग प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। मान लो शिप है, काऊ है, एक्स्ट्रा ले लो, और भी बहुत से एनिमल है, 2 नाम लेके बस तुम्हें एक्सप्लेन। तो ये किस में आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। ये किस में आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। वाई रीजन इनका प्राइमरी कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि दे आर ईटिंग द प्लांट्स। ये क्या? प्लांट्स को ईट कर रहे हैं। दे कम इन विच कैटेगरी? प्राइमरी कंज्यूमर। इन लोग को इसलिए बोला गया है कि ये डायरेक्टली किसको ईट कर रहे हैं? दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखो,
कार्निवोरस है, कार्निवोरस कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस are called it or called it secondary or called it secondary, they are called it secondary consumers। ठीक है। अब देखो कार्निवोरस और ओमनिवोरस को किस कैटेगरी में रखा गया बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर में। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? दे आर ईटिंग प्लांट आल्सो एंड दे आर ईटिंग अदर एनिमल्स आल्सो। ठीक है, जैसे शिप है, काउ, ये सब कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे आर ईटिंग ओनली द प्लांट्स। और जो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस, सो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो जो कार्निवोरस है, दे आर इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, क्योंकि कार्निवोरस दे आर ईटिंग दोज एनिमल्स हु आर ईटिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आया। एंड ओमनिवोरस दे आर ईटिंग प्लांट्स आल्सो एंड दे आर ईटिंग एनिमल्स आल्सो, सो दे आल्सो कम इन दिस कैटेगरी, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। इज इट क्लियर? Now, the carnivorous and omnivorous are called as secondary consumer as they eat other animals. They both depend on plants indirectly for their food. ठीक है, अब ये बात मैंने आपको क्लियरली बता दी कि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि वो उन एनिमल्स को किल करके खा रहे हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए दे आर नॉट डायरेक्टली ईटिंग द प्लांट्स, वो डायरेक्टली प्लांट नहीं खा रहे हैं। सो इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स बिकॉज दे आर ईटिंग दोज एनिमल हु आर ईटिंग द प्लांट्स। हो गया। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है इसमें आपके बुक में बहुत अच्छा। फॉर एग्जाम्पल ए टाइगर ईट्स गोट एंड ए गोट ईट प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल, सो इनडायरेक्टली द टाइगर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, टाइगर हार्बिवोरस एनिमल को खा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब टाइगर भी किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंड है। ठीक है, सो द प्रोसेस, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन, ठीक है, सो यू कैन अंडरलाइन और नोट डाउन इन योर रफ कॉपी आल्सो। द प्रोसेस of eating, the process of eating one organism, the process of eating one organism by the other, by
one organism by the other and getting eaten by another organism is called it the food chain. Is it clear? So what is food chain? For example, herbivorous animal eating the grass and that animal is eaten by the other animal. So in this manner there is a chain. The process of eating one organism by the other and getting eaten by another organism is called it food chain. तो अभी 2-3 फूड चेन हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.